Hello everyone, today we are doing one more IELTS cue card and our topic for today is talk about a famous person who has a significant influence on younger people. एक ऐसे famous person या फिर famous personality के बारे में बात करनी है जिनका काफ़ी अच्छा influence है younger generation पे. In this cue card you should mention who the person is, कौन है वो person, how he or she influences young people, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो यंग पीपल को, why and why you think he or she has an influence on younger people, और आपको क्यों लगता है कि यंगर पीपल के ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस है. You can start this cue card with younger people nowadays are easily influenced by celebrities and public figures that can have both positive and negative impacts on them in certain ways. आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो आराम से इन्फ्लुएंस हो जाती है किसी भी सेलिब्रिटी को देख के, किसी भी पब्लिक फिगर को देख के, और इसके दोनों तरह के इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. बट द पर्सन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज समवन हु हैज़ बीन मोटिवेटिंग टीनेजर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन जिस पर्सन की आज मैं बात करने वाली हूँ वो ऐसे इंसान है जो टीनेजर्स को बहुत ही लंबे टाइम से मोटिवेट करते आ रहे हैं. He was a hero of the early 20th century Indian independence movement and his name is Shaheed Bhagat Singh. Early 20th century में जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था वो उसके हीरो थे एंड उनका नाम है शहीद भगत सिंह. He was a martyr at a very young age because he began to protest British rule in India at that age. काफ़ी ही कम उम्र में वो शहीद हो गए थे क्योंकि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था वो उसके अगेंस्ट थे, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे. Not only he fought for our country's freedom, but he also inspired every generation in their young ages after his passing. उन्होंने सिर्फ हमारे देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने हर एक जनरेशन में जो यंग एज के बच्चे हैं उन सबको इंस्पायर किया है. Bhagat Singh was only 23 years old when he was hanged to death in the UK for the killing of Michael O'Dwyer, who was responsible for the Jallianwala Bagh massacre. जो भगत सिंह है वो सिर्फ 23 साल के थे जब उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी यूके में, क्योंकि उन्होंने जो माइकल ओडॉयर है उनको मारा था. मारा क्यों था? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए, in which hundreds of people peacefully protesting against the English government were fired by the British Indian Army. जलियांवाला बाग मैसाकर में hundreds of people को मारा गया था ब्रिटिश आर्मी द्वारा क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट. Bhagat Singh was of age 11 at that time and it impacted him deeply how people suffered in pain, and he decided to plot revenge against the British government. भगत सिंह उस टाइम पे 11 साल के थे और उन्हें बहुत डीपली इम्पैक्ट किया इस बात ने, बहुत ही गहरे तरीके से उस बात ने उनको इम्पैक्ट किया और उनसे देखा नहीं है कैसे लोग पेन में सफ़र करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेंगे. After which, when he grew up, he changed his name and ID to go illegally into the United Kingdom and stay for a while there, where he met other freedom fighters too to help him achieve his purpose. So जब फाइनली वो बड़े हुए उन्होंने अपना नेम चेंज किया, उन्होंने अपनी आईडी चेंज की और वो इलीगल तरीके से यूके गए जहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए रहे और वो बाकी फ्रीडम फाइटर्स से भी मिले जिन्होंने उनकी हेल्प की उनका पर्पस अचीव करने में. At last, after laying out his plan, he successfully assassinated Sir Michael O'Dwyer in an open assembly. अपना प्लान सक्सेसफुली ले आउट करने के बाद उन्होंने जो माइकल ओडॉयर थे उनको ओपन असेंबली में असैसिनेट किया यानी उनको मार दिया, हत्या कर दी. Moving on, this action by Bhagat Singh was a great sign of bravery and valor which motivates the youth even today to stand for justice. ये जो एक्शन था भगत सिंह का, ये एक ब्रेवरी का साइन था जो आज भी यूथ को मोटिवेट करता है जस्टिस के साथ खड़े रहने के लिए. Apart from that, he taught with his actions to be fearless and encourage people to stand against oppression, which led India to become a socialist country.
इसके सिवाय उन्होंने उनके एक्शंस ने फियरलेस बनना सिखाया और लोगों को इनकरेज किया ऑपरेशन के अगेंस्ट स्टैंड करने में, कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने में, जिसकी वजह से इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बना. Even in the present day, his story is a reminder that even in the face of great adversity, it is possible to achieve victory. आज के टाइम पे भी उनकी जो स्टोरी है एक रिमाइंडर है कि अगर चीज़ें हमारे हक में नहीं भी हैं, उस टाइम पे भी विक्ट्री अचीव करना पॉसिबल है. Role models like Bhagat Singh make the youth work better for their country and their self-development. This is the reason he is still remembered today for his fearlessness. भगत सिंह एक ऐसे रोल मॉडल हैं, फिर वो रोल मॉडल भगत सिंह जैसे जो आज भी यूथ को इंस्पायर करते हैं अपनी कंट्री के लिए बेटर काम करने के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने के लिए. और यही एक रीज़न है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है उनकी फियरलेसनेस के लिए. So guys, this was our cue card for today. I hope you liked it and thank you for watching.